when Jesus died, he goes up down there. I can see him on that Friday afternoon after his death. और जब यीशु की मृत्यु हुई वह नीचे की ओर गया, मैं उसे उसकी मृत्यु के बाद उस शुक्रवार रात्रि को देख सकता हूं। Knock on the door of the regions of the lost. Let's follow him a minute. The door opens. There was women. There was men. There were young ladies. There were old. They were all together in that hideous place called the prison of the lost souls. वह भटके हुए लोगों के स्थानों और द्वार पर खटखटाता है। आइए हम एक मिनट के लिए उसका अनुकरण करें। द्वार खुलता है, वहां पर स्त्रियां थीं, पुरुष थे, वहां पर युवा महिलाएं थीं, वहां पर बूढ़े थे। वे सभी एक साथ उस डरावने स्थान पर थे जिसको कि भटके हुए प्राणों का कैद खाना कहा जाता है। If I had time, I'd like to tell you, and it might be just a vision, but one time I visited that place and screamed for mercy. When I was a sinner going under operation, when I come out, I was standing in the west with my hands up towards the heaven and a cross shining on me. यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको बताता, और वो हो सकता है कि वह बस एक दर्शन था, परंतु एक बार मैं उस स्थान में गया था और करुणा के लिए चिल्ला रहा, जबकि मैं एक पापी था और मेरी शल्य चिकित्सा हो रही थी। जब मैं बाहर आया, मैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर करके पश्चिम में खड़ा हुआ था और क्रूस मेरे ऊपर चमक रही थी। But in that mournful place, there Jesus walked to the door. Everything had to witness that he was the Son of God because they had been preached to in the long suffering of the days of Noah. परंतु उस उदासीन स्थान पर यीशु उस द्वार तक चलकर गया। हर एक बात को गवाह होना था कि वह परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि उसको नूह के धीरे धरने के दिनों में प्रचार किया गया था। Knocks at the door. He said, I am he who Enoch spoke of. I am the seed of the woman that was the bruise of the serpent's head. द्वार पर खटखटाता है। उसने कहा, मैं ही वह हूं जिसके विषय में हनोक ने बोला था, मैं स्त्री का वंश हूं जिसे सर्प के सिर को कुचलना था। Every word of God has been fulfilled. I've just died down at Calvary and I've purchased my church. परमेश्वर का हर एक वचन पूरा हो चुका है। मेरी मृत्यु अभी वहां कलवरी पर हुई है। मैंने अपनी कलीसिया को खरीद लिया है। And the ones that Enoch spoke of, I'm he. And they was without mercy, without hope, because they had transgressed, and the door was shut in their face. और जिसके विषय में हनोक ने कहा था, मैं वही हूं, और वे वहां पर बिना किसी करुणा के थे, बिना किसी आशा के थे, क्योंकि उन्होंने पाप किया था और द्वार उनके मुंह पर बंद हो गया था। On down into the regions of demons, on down to the very gates of hell. He knocks at the door. और नीचे शैतानों के स्थान पर और नीचे अधोलोक के फाटकों पर वह द्वार पर खटखटाता है। This is when he's in a tomb, his body is, waiting the resurrection. He visits the places that the just and unjust goes, where you'll go one of these days, to one of the other places. ये तब हुआ जब वो कब्र में था, उसकी देह पुनरुत्थान का इंतजार कर रही थी। वह उन स्थानों में जहां पर धर्मी और अधर्मी जाते हैं, जहां पर आप इनमें से किसी एक दिन में जाएंगे, इनमें से किसी एक स्थान में। And he knocks at the door of hell. And when it did, the devil come out. और वे खटखटाता है, अधोलोक के द्वार पर खटखटाता है, और जब उसने ये किया, शैतान बाहर आया। And I can just hear him say, "Oh, so finally you arrived." और मैं बस उसे यह कहते हुए सुन सकता हूं, ओ अनंता तू आ ही गया। I sure thought I had you when I killed Abel. मैंने निश्चय रूप से सोचा था कि मैंने तुझे पा लिया जब मैंने हाबिल को मारा था। You see, when that seed was promised in the Garden of Eden, the devil has constantly tried to destroy that seed. आप समझे? जब वंश की प्रतिज्ञा अदन की वाटिका में की गई थी, शैतान ने हमेशा से यह चाहा कि वह उस वंश का नाश कर दे। And the
death of Abel and the coming of Seth was just the death, burial, and resurrection of Christ. That seed must continue. And he tried to destroy it. और हाबिल की मृत्यु और शेत का आना वे केवल मसीह का मरना, दफन होना और जी उठना था। वंश को बढ़ते रहना था और उसने यह यत्न किया कि उसका नाश कर दे। He said, I thought I had you when I destroyed Abel. I thought I had you when I destroyed the prophets. उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैंने तुझे पा लिया जब मैंने हाबिल का नाश किया। मैंने सोचा था कि मैंने तुझे पा लिया जब मैंने भविष्यवक्ताओं को नाश किया। I was positive I had you when I beheaded John. But now after all, you've arrived. I've got you now. Oh my. मैं निश्चित था कि मैंने तुझे पा लिया जब मैंने यूहन्ना का सर कटवाया, परंतु अब अंत में तू यहाँ आ गया। अब मैंने तुझे पा लिया। ओ मेरे परमेश्वर। I can hear him say, Satan, come here. He's boss now. Reaches over, grabs that key of death and hell off his side, hung it on his own side. मैं उसे कहते सुन सकता हूं, शैतान इधर आ, यह अब स्वामी है, यहां पर आता है, उसकी एक ओर से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को झपट लेता है। I want to serve notice on you. You've been a bluff long enough. उसको अपनी एक ओर लटकाता है। मैं तुझे अब एक अधिसूचना जारी करता हूं। I am the virgin born son of the living God. My blood is still wet on the cross and the full debt is paid. तूने बहुत देर तक झांसा दिया। मैं कुंवारी से जन्मा जीवते परमेश्वर का पुत्र हूं। मेरा लहू अभी भी क्रूस पर गीला है। Amen. You have no rights no more. You are stripped. Give me those keys. That's right. और संपूर्ण कर्ज चुकाया जा चुका है। तेरे पास और अधिक कोई भी अधिकार नहीं। तू उघाड़ा जा चुका है। मुझे उन कुंजियों को दे। ये ठीक बात है। Turns around and gives him a good healthy kick and slams the door together and says, Stay in there. I'm boss from now on. वापस मुड़ता है और उसको एक अच्छी सी लात मारता है और द्वार की ओर जोर से धक्का देता है और कहता है, ये यहीं पर रह, अब मैं स्वामी हूं। Now he didn't have the keys to the kingdom because he gave them to Peter. We get on that in the morning at water baptism. अब उसके पास राज्य की कुंजियां नहीं थी क्योंकि उसने उसको पतरस को दे दी थी। हम इस बात को प्रातः देखेंगे। हम पानी के बपतिस्मे को देखेंगे। But he had the keys to death and hell, and he took them. After his resurrection, he said, I got the keys of death and hell. परंतु उसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां थी और उसने उन्हें ले लिया। अपने पुनरुत्थान के बाद उसने कहा, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। Peter had the keys of the kingdom. Satan had the keys of death and hell. But now Jesus has got them. He's boss. पतरस के पास परमेश्वर के राज्य की कुंजियां थी। शैतान के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां थी, परंतु अब वे यीशु के पास हैं। वे अब स्वामी हैं। Here he starts up. It's getting Easter. Time's passing fast. But there's another group. वे यहाँ पर आरंभ करता है। ईस्टर का समय हो रहा है। समय तेजी से गुजर रहा है, परंतु यहाँ पर एक और झुंड है। Where's Job? Where's Abraham? Where are they at? अयूब कहाँ है? इब्राहिम कहाँ पर है? वे कहाँ पर है? Where's those fellows that trusted God's word? Has he forgotten them? Did death annihilate them? Was that all of it? Never. Never! God has to keep his word. वे लोग कहाँ पर है जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया था? क्या उसने उन्हें भुला दिया? क्या मृत्यु ने उन्हें नाश कर दिया? क्या यही उसकी समाप्ति थी? कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर को अपना वचन सदा स्मरण रखना होता है। I can see him. Let's take a little peep into paradise and look over there. And I see Sarah and Abraham walking around there. And after a while, something on the door. मैं उसे देख सकता हूं। आइए हम स्वर्ग जैसे उस स्थान में, पैराडाइज में थोड़ा झांक कर देखें और यहां पर देखें। और मैं वहीं पर सारा और इब्राहिम को चारों ओर चलते हुए घूमते हुए देख सकता हूं। और कुछ समय के बाद Abraham goes and opens the door. Said, honey, come here. Look here.
here. That's the very same one that stood with me under the oak that day. He's Abraham's God. कोई द्वार पर है, इब्राहिम आता है और द्वार को खोलता है, कहता है प्रिय यहाँ आओ, देखो, यहाँ पर देखो, ये वही है जो कि मेरे पास मार्जर के वृक्ष के नीचे उस दिन खड़ा था। ओ इब्राहिम का परमेश्वर है। हालेलुया। Amen. Just then I can see Daniel look over his shoulder ठीक तभी मैं डैनियल को उसके कांधों के ऊपर से देख सकता हूँ and say, that's the rock that was shoot out of the mountain. Just as certain as I'm standing here. और कहता है ये तो वही चट्टान है जो कि उस पहाड़ में से खोदी गई थी। ये उतना ही निश्चित है जितना निश्चित मेरा यहाँ खड़ा होना है। I see Job raise up, said, that's my Redeemer. And I said, I knew that lived and someday he'd stand up on the earth. मैं अय्यूब को खड़ा होते हुए देख सकता हूँ। ये मेरा छुड़ाने वाला है जिसके लिए मैंने कहा था कि वह जीवता है और किसी दिन वह इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। My body may not be but a little spoonful of ashes, but in 15 minutes from now I'll be in it again. That's him. मेरी देह को कुछ और नहीं वरन एक चम्मच भर राख क्यों ना हो जाए, परंतु अब से 15 मिनटों में मैं उसी देह में होऊंगा। ये वही है। Ezekiel looks over the top and said, I seen that same person as a wheel in the middle of the wheel, turning way up in the middle of the air. यहेजकेल ऊपर से देखता है और कहता है मैं इसी व्यक्ति को पहिए के अंदर पहिए के रूप में देखा था जो कि वहां ऊपर हवा में घूम रहा था। Oh my! Then up comes Enoch. Enoch said, I saw him coming with 10,000s of his saints to execute him. हो मेरे परमेश्वर। तब फिर हनोक ऊपर आता है। हनोक कहता है मैंने उसे न्याय करने के लिए 10,000 संतों के साथ आते हुए देखा था। There was the Old Testament saints waiting. Sure there was. Under the atonement of blood, they could not go in the presence of the God of heaven, because goat and sheep blood could not take away sin. वहीं पर पुराने नियम के संत थे जो कि इंतजार कर रहे थे निश्चित रूप से कि वे लहू के प्रायश्चित के नीचे थे। वे परमेश्वर की उपस्थिति में थे। वे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते थे, स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि भेड़ों और बकरियों का लहू पाप को नहीं ले जा सकता था। But he said, my brethren, I am the one that you think I am. I am the seed of the woman. परंतु उसने कहा मेरे भाइयों मैं ही वही हूं जिसको कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। मैं स्त्री का वंश हूं। I am the son of David. I am the son of God. मैं दाऊद का पुत्र हूं। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। I am the virgin born one. My blood has atoned for it. मैं कुंवारी से जन्मा हूं। मेरे लहू ने प्रायश्चित किया है। You waited on the blood of sheep and goats, but now my blood atones and you're free. तुमने भेड़ों और बकरियों के लहू के नीचे इंतजार किया, परंतु अब मेरा लहू प्रायश्चित करता है और अब तुम स्वतंत्र हो। Let's go out. It's getting almost Easter. आओ ऊपर चले, ईस्टर का समय हो चुका है। Just think that was just about 1900 something years ago tonight. जरा सोचें, ये बात आज रात्रि 1900 और कुछ वर्ष पहले हुई थी। I hear Abraham say, Lord, when we get up in our body again, Sarah and I just loved it so well. मैं इब्राहिम को कहते सुन सकता हूँ, प्रभु हम अपने देहों में कब जाएंगे और सारा और मैं उससे कितना अधिक प्रेम करते थे। Do you mind if we make a little whistle stop on your road? आपको बुरा तो नहीं लगेगा, परंतु हम एक प्रकार से अपने मार्ग में थोड़ी देर के लिए रुक जाएं? Well, I can hear him say, well, no, certainly not. I'm going to stay with my disciples for about 40 days. अच्छा, मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, क्यों नहीं? निश्चित रूप से मैं अपने चेलों के साथ लगभग 40 दिनों तक रुका रहूंगा। Look around, see how everything looks. On that glorious Easter morning where we'll take up in the morning, the Lord willing. चारों ओर देखो और ये देखो कि सब कुछ कैसा दिखता है। उस महिमा मुक्त ईस्टर की प्रातः यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम उसे प्रातः देखेंगे। When he rose from the dead, the Bible said according to St. Matthew 27, जबकि वो मरे हुए में से जी उठा,
बाइबल मत्ती 27 के अनुसार कहती है That many of the saints that slept in the dust of the earth rose and come out of the graves. बहुत से संत जो पृथ्वी की मिट्टी में सो रहे थे जी उठे और अपनी कब्रों से बाहर आ गए। Who was it? Abraham, Isaac, Jacob, Job. वे कौन थे? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, अय्यूब। Those who by spiritual revelation know that the Redeemer would stand on the earth someday. That's them, the first fruits of those that slept. वे जो कि आत्मिक रूप से प्रकट प्रकाशमान के द्वारा जानते थे कि छुड़ाने वाला पृथ्वी पर किसी दिन खड़ा होगा, वे वही थे, सोए हुए के पहले फल थे। There they walked into the city. I can see Sarah and Abraham, young and full of and handsome and full of life, never to be old no more, never to be sick no more, never to hunger no more, walking around in their body. वे वहां पर शहर में चले फिरे और सारा और इब्राहिम को देख सकता हूं, वे युवावस्था में थे और भरे हुए और सुंदर और जीवन से भरपूर, कभी बूढ़े ना होने के लिए, कभी बीमार ना होने के लिए, कभी भूखे नहीं होने के लिए अपनी देहों में चल फिर रहे थे। You say, Brother Branham, is that mythical? No, sir. I'll show you the scriptures in a minute. आप कहते हैं भाई ब्रैनम, क्या ये कोई कथा कहानी है? नहीं श्रीमान, मैं आपको वचन से कुछ मिनटों में दिखाऊंगा। When he began to go up, they only seen him, but the Old Testament saints went with him. जब उसने ऊपर जाना प्रारंभ किया, उन्होंने केवल उसको देखा था, परंतु पुराने नियम के संत उसके साथ में गए। For the Bible said that he led captivity captive and give gifts unto man. And I can see him as he goes up and joins with his church. क्योंकि बाइबल ने कहा वे लोगों को बंधुआई में से ले गया, उसने मनुष्यों से भेंट ली और जैसे कि वो ऊपर जाता है और अपनी कलीसिया से मिलता है, मैं उसे देख सकता हूं। Two angels out of the band that were playing the music come back down and said, Ye men of Galilee, why stand you looking up for this same Jesus that was taken up's coming again? Certainly. दो स्वर्गदूत जो कि बैंड में थे और संगीत को बजा रहे थे, वहां पर वापस आए और कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों स्वर्ग की ओर देख रहे हो? क्या यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग पर जाते देखते हो, उसी रीति से वह फिर आएगा। They hurried back to join the procession, and down through the skies Jesus and the Old Testament saints went. निश्चित रूप से वे जल्द ही उस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहते थे ताकि वापस चले जाएं। They passed the moon, they passed the sun, they passed the stars, and when they got inside of that great, beautiful white heavens, और आसमानों में से होते हुए यीशु और पुराने नियम के संत, उन्होंने चंद्रमा को पार किया, उन्होंने सूर्य को पार किया, उन्होंने सितारों को पार किया, और जब महान सुंदर सफेद स्वर्ग उनकी दृष्टि में आया, the Old Testament saints screamed out, quoting Scripture, lift up ye everlasting gates, Amen. and be lifted up. पुराने नियम के संत चिल्ला उठे, वचन को बोल उठे, हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो। Hallelujah. Lift up ye everlasting gates, and be ye lifted up, and let the King of glory come in. हे सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। All the angels gathered up on the top of the banisters of heaven and said, Who is this King of glory? सारे स्वर्गदूत स्वर्ग की दीवारों के ऊपर जमा हो गए, उन्होंने कहा, वे प्रतापी राजा कौन है? The Old Testament saints said, The Lord of hosts, mighty in battle. पुराने नियम के संतों ने कहा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, वे विजेता है। Amen. He was a conqueror. Praise God. The angel pressed the big button and the pearly gate swung open. स्वर्गदूतों ने बड़े से बटन को दबाया और मोतियों का एक बड़ा फाटक खुल गया। Right down through the city of Jerusalem come the great mighty conqueror, bringing the Old Testament saints. और यरूशलेम के शहर के होते हुए वे महान विजेता आया है, पुराने नियम के संतों को लेकर आया है। The angelic bands are playing and the angels are shouting. He was the mighty conqueror.
स्वर्गदूतों के बैंड बज रहे थे, स्वर्गदूत चिल्ला रहे थे, वे महान विजेता था। He had the keys of death and hell hanging on his side. उसकी एक और मृत्यु अधोलोक की कुंजियां लटक रही थी। My. Going right down the past the palaces of glory till he got to the throne. महिमा में महलों से पास से होते हुए जब तक कि वे अपने सिंहासन पर ना आ गया। And he said, Father, here they are. They believed in faith on your word that I'd come someday. I have conquered both death and hell. उसने कहा, पिता वे यहाँ पर हैं, उन्होंने आपके वचन पर विश्वास किया है कि मैं किसी दिन आऊंगा। मैंने मृत्यु और अधोलोक दोनों पर जय पाई है। Amen. What was it, brother? He had the scars in his hand to show that he had been in the battle. Amen. Glory to God in the highest. Amen. He is that mighty conqueror. Here they are, Father. Abraham, Isaac, and Jacob. भाई वे क्या था? उसके दोनों हाथों में निशान थे, ये दिखाने के लिए कि वे युद्ध में था। परमेश्वर जो महान है उसकी महिमा होए। ओ महान विजेता पिता वे यहाँ पर हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। I can hear him say, Son, climb up here by my side and sit down Amen. until I make every enemy your footstool. मैं उसे कहते सुन सकता हूं, पुत्र मेरे सोल चढ़कर आजा और बैठ जा कि मैं हर एक शत्रु को तेरे पैर रखने की पीढ़ी ना कर दूं। Brother, someday he will come again. And what a day it'll be. He wasn't idle when he was in the tomb. We think he was just laying there dead, but he was down still conquering. भाई किसी दिन वो वापस आएगा और क्या ही महान दिन होगा जब वे कब्र में था, जो कि व्यर्थ बैठा न रहा। हम ये सोचते हैं कि वे बस वहां मृत पड़ा हुआ था, परंतु वह अभी भी जय पा रहा था। He went down and took the keys away from Satan. He's got the keys of both death and hell tonight. He said, because I live, you can live also. वे नीचे गया, शैतान से कुंजियों को ले गया। उसके पास आज रात्रि मृत्यु और अधोलोक दोनों की कुंजियां हैं। उसने कहा, चूंकि मैं जीवता हूं, तुम भी जीवन पा सकते हो। Amen. I wonder tonight, my dear brother, sister, have you thought that over sincerely? Do you realize that you only live because He lives? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज रात्रि मैं ये आश्चर्य कर रहा हूं कि क्या आप सत्यनिष्ठा से उस बात कर उस विषय में सोचा है कि आपको इस बात का एहसास है कि आप इसलिए जीते हैं क्योंकि वो जीवता है। Have you appreciated enough to offer up yourself and say, God, here I am, a sinner, be merciful to me? क्या आपने इस बात की पर्याप्त रूप से सराहना की है कि आप अपने आप को समर्पित करें, कहे परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मुझ पर दया कर। Have you ever accepted that all-sufficient sacrifice? Have you ever told Him you loved Him? Does it hurt your feelings when you do wrong? आपने पर्याप्त बलिदान को स्वीकार किया है कि आपने अभी उसको यह बताया है कि आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है जब आप कोई गलत कार्य करते हैं? If you've never come to that experience now in this entombment when our time's getting away, just feeling fine, but I'm wondering if you haven't ever received Christ as your personal Savior, I wonder if you would do it while we bow our heads just a moment in a word of prayer. यदि आप इस दफनाए जाने में कभी इस प्रकार से अनुभव नहीं कराए, जबकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, बस अच्छा महसूस कर रहे हैं, परंतु मैं आश्चर्य कर रहा हूं, यदि आपने कभी भी मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि यदि आप ऐसा करेंगे, जबकि हम अपने स्वरों को एक क्षण के लिए प्रार्थना में झुकाते हैं।